જય જિનેન્દ્ર, કેમ છો બધા? મજામાં ને? એકદમ સરસ. જલેબી ફાફડા ખાઓ છો કે નથી ખાતા? તો આઈ હોપ તમે લોકો એન્જોય કરો છો તમારા હોમ ક્વોરન્ટાઇન, સરખી રીતે ભણો છો અને આ બધું એન્જોય પણ કરો છો. આજે હું જૈનેશ કોઠારી ફ્રોમ વિઝડમ કોમર્સ ક્લાસીસ. આજે આપણે બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જના આગળ થોડા સમ સોલ્વ કરવાના છે અને એના પહેલા આપણે ક્વેશ્ચન જોશું ફ્રોમ ધ પ્રોજેક્ટર અને પછી સમ સોલ્વ કરશું. આ સમ સોલ્વ કરવા માટે તમે લોકોને જર્નલ એન્ટ્રીઝ આવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ ઇફ યુ નો ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ નાઇસલી, પછી તમે લોકો બધા સમ સરખી રીતે કરી શકશો. ઓકે, સો ચાલીએ આપણે સમ્સ શરૂ કરવાના છે. સૌથી પહેલા આપણે ક્વેશ્ચન્સ જોવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સમ. So the question is given to us on textbook page number 300 and question number 17. It says journalize the following transaction in the books of Apurva. Okay, so hum kaun hai? We are Apurva, and looking from Apurva's point of view, we are going to start with the sum. Okay, this is point number 1. So now point number 1, Prashant's acceptance for 60 days. Acha, what you can do is there are 4 transactions. You can keep the question in front of you, or else you can just take the screenshot of this particular sum, because I'm going to remove the question part and I'm going to start solving the sum on the board. Students, it's a request to you all that if you can you can try sums doing on your own first and then look on the video whether how I have been solving this sum. Okay, so I'm going to remove the question part and read transaction wise one after another, and then I'll be solving it on the board. Okay, so thank you. So we have a new board today over here. You can see the new board. Okay, so in the books of Apurva, okay, so we are Apurva, Apurva, Apurva. Okay, journal entries. We have no dates over here. They have not given us any dates, so we will be writing serial number 1, 2, 3. Okay, I'll be writing over here date, particulars, LF, debit, rupees, credit, rupees. So serial number 1. So first one, it says that Prashant's acceptance मतलब प्रशांत कौन हो गया? Drawee. Okay, हम कौन है? Drawer. We are Apurva. Okay, whenever the name Apurva comes, that means हम हमारे बुक में लिख रहे हैं, अपूर्वा की बुक में लिख रहे हैं. तो Prashant's acceptance for 60 days 12,750 deposited into bank for collection. हमने वो बिल किसको दिया था? Bank for collection को दिया था. Bank for collection. Okay, so who is the receiver? Bank for collection is the receiver. So bank. Okay, so we'll be writing bill sent for collection. Okay, so we'll write over here bill sent for collection, account debit to bill receivable account. What is the amount given to us? They have given us the amount 12,750. So 12,750 and 12,750. ओके, ये बिल हमने क्या किया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दिया था. सो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. So we have finished transaction number 1 over here. Okay, now the next is Apurva sold goods to Kirti for 20,000. So हम अपूर्वा है, हमने गुड्स क्या किया? सेल किया है. So अगर जो सेल करेगा that is a drawer, always drawer. Okay, सबसे पहले हमने गुड्स को क्या किया? सेल किया, and for the same amount 2 months का बिल बनाया, and then बिल बनाया, and finally the bill was endorsed to रेखा. मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कितने एंट्रीज है? 3 एंट्रीज है. सबसे पहले गुड्स सोल्ड किया, फिर बिल बनाया, और बिल बनाने के बाद एंडोर्स किया. गुड्स सोल्ड किया, बिल बनाया और बिल को एंडोर्स किया. 3 एंट्रीज इन ऑल. तो सबसे पहले बिल सेल करेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे. हु इज द रिसीवर? गुड्स इज सोल्ड टू कीर्ति. तो कीर्ति इज रिसीवर. कीर्ति's अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सॉरी, टू सेल्स अकाउंट. ओके, सबसे पहले गुड्स क्या किया हमने? सेल किया टू सेल्स अकाउंट. ओके, और अमाउंट क्या था? 20,000 रुपीज. द अमाउंट इज गिवन टू अस 20,000 एंड 20,000. सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. सो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन ए लिखेंगे, बिकॉज ट्रांजैक्शन नंबर 2 में टोटल 3 एंट्री है.
सेल करने के बाद क्या हमने बिल बनाया, बिल बनाने की एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दिया हमको, कीर्ति ने बिल दिया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ड्रॉवीज अकाउंट, कीर्तिज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अगेन 20,000। बिल कितने महीने के लिए बनाया था, फॉर 2 months। हम लोग नरेशन में लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 months। एंड गोइंग फॉर सी पार्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में टोटल 3 एंट्री है। सबसे पहले गुड सोल्ड किया, बिल बनाया और गुड एंडोर्स किया। टेल मी हु इज द रिसीवर, सो द रिसीवर इज रेखा, द बिल इज एंडर्स टू रेखा, हु इज द रिसीवर, रेखा इज द रिसीवर, तो रेखाज अकाउंट डेबिट, टू हमने उसको क्या दिया, बिल दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओके, एंड द अमाउंट इज अगेन 20,000 and 20,000 being bill endorsed to रेखा। यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 2 का, ए बी एंड सी वी हैव कंप्लीटेड, ओके। सो नाउ गोइंग फॉर द थर्ड ट्रांजैक्शन, इट सेज रिसीव 30% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ मुक्ता, ओके। तो क्या हुआ, मुक्ता के पास से हमको 30% ऑफ द अमाउंट मिला, who was declared insolvent। हमको पता है इंसॉल्वेंट की कितनी एंट्री आती है, 2। हमेशा इंसॉल्वेंट की कितनी एंट्री आती है, 2। पहले बिल डिसऑनर की और फिर बैड डेब्ट्स की, ओके। तो रिसीव 30%, हमारे पास पैसा 30% आया फ्रॉम द स्टेट ऑफ मुक्ता हु बिकेम इंसॉल्वेंट। तो मुक्ता कौन है, ड्रॉवी है, हमारे पास पैसा आ रहा है मतलब हम कौन है, ड्रॉवर है, ओके। हु हैड डिसऑनर एक्सेप्टेंस ऑफ 23,850 एंड नोटिंग चार्जेस पेड 150, ओके। तो सबसे पहले बिल डिसऑनर हुआ है जिसमें नोटिंग चार्जेस है और फिर बैड डेब्ट्स की एंट्री। इंसॉल्वेंट की हमेशा कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री। सबसे पहले डिसऑनर की जिसमें नोटिंग चार्जेस भी है और सेकंड इज बैड डेब्ट्स वाली एंट्री, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थर्ड लिखेंगे और हमें सबसे पहले कौन सी एंट्री करनी है, हमें एंट्री करनी है बिल डिसऑनर होने की। बिल डिसऑनर होने की एंट्री क्या आएगी, ओके। हु इज द ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हु इज ड्रॉवी, let's see the name is MUKTA, Mukta's account debit, okay, MUKTA, Mukta's account debit टू क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज बिल हमारे पास ही था, और टू कैश बैंक क्यों, बिकॉज नोटिंग चार्जेस हमने पे किया है, हमने क्या पे किया, नोटिंग चार्जेस पे किया है। अच्छा, मुक्ता कितना अमाउंट था, टोटल अमाउंट था 23,850, बिल का अमाउंट कितना था, 23,850 रुपीज था, और कितना हमने 150 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किया, दैट कम्स टू 24,000 रुपीज। अब मुक्ता हमारा क्या बन गया है, डेटर बन गया है। कितने अमाउंट से डेटर बन गया है, 24,000 रुपीज से डेटर बन चुका है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, बिंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय अस, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पे क्या हो गया, मेरा पेज फिनिश हो चुका है, तो वी नो वंस वी फिनिश द पेज हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे यहां पे। लेट्स चेक द अमाउंट, कितना अमाउंट है, 24, 44, 64, 84, 84 प्लस 12 96, तो 96,750, कितना अमाउंट है, 96,750 एंड 96,750। इसको हम यहां पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, 20, 20, 60, 70, 80, 80, 90 and 96,750. Okay, can you see this red part, this part is by one page. I'm going to start on the another page. Okay, again on the new page I will write everything again. Date लिखना होगा, in the books of क्या है, अपूर्वा है, particulars यहां पे क्या आएगा, LF आएगा, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ओके, तो हम कहां पर है, हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे है। अच्छा, ये पेज पे हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, तो ये पेज पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आएगा, 96,750, 96,750, 96,750। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ था और नोटिंग चार्जेस आया था। नोटिंग चार्जेस
इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएगी, अभी बैड डेब्ट्स इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएगी, हम 3 में बी पार्ट पे हैं, तो उसकी इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट to bill to who is the drawee, Mukta's account, to Mukta's account, to Mukta's account. अच्छा, टोटल मुक्ता से कितना अमाउंट लेना था, 24,000 रुपीज लेना था। 24,000 रुपीज में से मुझे बताओ कितना रिकवर हुआ, सिर्फ 30% रिकवर हुआ, 30%। सो व्हाट इज 30% ऑफ 24,000? तो 24,000 into 30/100, 0 कट, ओके, तो क्या आएगा, 0 0 30%। तो 3 4 का कितना होता है, 3 4 का 2,400, 4,000, 24, 48, 58, 68, 72. So that will come to 0 0, 3 4 12, 1 carry, 3 2 6 7, okay? तो 24,000 minus 7,200 मतलब कितना होगा, 7 सा, तो 1 2, 7 4 28, 2 कैरी, 7 14, 15 16, तो 16,800, 16 और 7 कितना होता है, 16 और 8 24,000, ओके। सो इन शॉर्ट टोटल मुक्ता से मुझे कितना लेना था, 24,000 रुपीज लेना था, मुझे मुक्ता से कितना लेना था, 24,000, लेकिन सिर्फ 30% ऑफ द अमाउंट रिकवर हुआ, 16,800 क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। सो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर नरेशन बिंग मुक्ता became insolvent and only 30% of the amount could be recovered, क्या लिखा है, could be recovered from the private estate, from his private estate, ओके। सो यहां पे हमने फिनिश कर दिया, हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। एंड गोइंग फॉर द लास्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ वन, ओके। So fourth transaction, it says Apurva renews her acceptance 36,000 to Anuradha. Renew वर्ड आया है हमेशा, उसका मतलब है पहले ओल्ड बिल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जब भी रिन्यू वर्ड आएगा क्वेश्चन में, ओल्ड बिल को क्या करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे। So Apurva renews her acceptance of 36,000 to Anuradha by paying check of 6,000 rupees. तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, फिर पार्ट पेमेंट करेंगे, पीपी, फिर क्या करेंगे हम लोग, पीपी करेंगे, ओके, मिलजुल कर पीपी करेंगे, ओके, पार्ट पेमेंट करेंगे, और फाइनली न्यू बिल बनेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, न्यू बिल बनेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो न्यू बिल के बाद आएगा न्यू बिल, इंटरेस्ट के बाद आएगा न्यू बिल। मैंने बताया था इंटरेस्ट डबल डेट करता है, कभी वो पीपी के साथ जाता है, कभी वो न्यू बिल के साथ जाता है। ये समय वो किसके साथ जा रहा है, न्यू बिल के साथ जा रहा है। तो जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा, जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा। सो एंट्री क्या होगी, पहले बिल कैंसिल करेंगे, फिर पार्ट पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और न्यू बिल बनाएंगे। इज दैट फाइन? अपूर्वा रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, अपूर्वा रिन्यू एक्सेप्टेंस मतलब हम कौन है, ड्रॉवी है, ड्रॉवी। अपूर्वा ने रिन्यू किया एक्सेप्टेंस बाई पेइंग, मतलब हम पैसा पे कर रहे हैं, हमने बिल डिसऑनर किया है, हमने, ओके, हम कौन है, ड्रॉवी है। तो नाउ वी हैव टू राइट इट फ्रॉम ड्रॉवीज पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हम ड्रॉवर थे, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी हम ड्रॉवर थे, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में भी हम ड्रॉवर थे, लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हम कौन है, ड्रॉवी है, ड्रॉवी। सो ऐसा हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट लुकिंग एट द ट्रांजैक्शन कि हम ड्रॉवर है या ड्रॉवी है, ओके। तो ड्रॉवी के बिल में सबसे पहले बिल क्या हुआ, कैंसिल हुआ। कैंसिल की एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिल्स payable account debit to what is the name of the drawer, Anuradha. It's a nice name, Anuradha. Anuradha's account amount कितना है, 30, the amount is given to us 36,000, यहाँ लिखेंगे 36,000 and 36,000 being bill cancelled। हमने बिल कैंसिल कर दिया है। टोटल 4 एंट्री आएगी, हमने फर्स्ट एंट्री पास कर दी है, सेकंड, फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, डेबिट और लॉस है, एक्सपेंसेस। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद हमको पार्ट पेमेंट करना है, पार्ट पेमेंट मतलब पैसा चुकाना है। हु इज द रिसीवर, अनुराधा इज द रिसीवर। अनुराधा's account debit, अनुराधा's account debit to
कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट मतलब हमने पे किया है, हमने पे किया है, तो क्या लिखा है बाई, अच्छा बाई पेइंग चेक ऑफ 6000, बाई पेइंग अ चेक ऑफ 6000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, हमने पे कैसे किया है, चेक से पे किया, बाई बैंक अकाउंट 6000 रुपीज, 6000 रुपीज क्या है यहाँ पे, बेइंग पार्ट पेमेंट मेड बाय चेक, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सी पॉइंट लिखेंगे, हम लोग सी पॉइंट लिखेंगे, सी पॉइंट में क्या आएगा, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनुराधा's अकाउंट, टू अनुराधा's अकाउंट। अच्छा इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज हमको नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मुझे बताओ टोटल 36,000 में से 6,000 पे कर दिया है, पे कर दिया तो कितना बचा, 30,000, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 इंटू कितना परसेंट, 14.5%, 14.5% इंटू कितने मंथ्स के लिए, 2 months, so 2/12, 2/12, ओके, तो 2 0 कट, 2 0 कट, ओके, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 6 जा, फिर ये 6 1 जा, ये क्या होगा 50 हो जाएगा, 650, तो हमें क्या करना है 145 इंटू 5 करना है, 145 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो 2 कैरी वापस, 5 जा 5 6 7, so amount is 725, 725 and 725, यहां हम क्या करेंगे, बिंग इंटरेस्ट चार्ज, और फाइनली हम लोग लास्ट एंट्री पास करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, बिल कैंसिल किया, पार्ट पेमेंट किया, फिर इंटरेस्ट की एंट्री आई, एंड फाइनली हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और एंट्री पास करनी है, आई हैव टू जस्ट रब अ लिटिल पार्ट ऑफ द बोर्ड फॉर दैट। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट वाला वर्किंग नोट है, यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक कंपल्सरीली एट द एंड ऑफ द sum, okay, 30,000 was the remaining amount into 14.5% हमको क्वेश्चन में दिया है into 2 months, so 2/12, and the answer is 725. If you want, you can calculate on your own as well. So starting with the last entry, okay, सबसे पहले बिल कैंसिल किया, फिर क्या हुआ, पार्ट पेमेंट हुआ, पार्ट पेमेंट का इंटरेस्ट, एंड फाइनल न्यू बिल, okay, so अनुराधा who is the receiver, अनुराधा is the receiver, अनुराधा's account debit टू, हमारे पास से क्या गया, बिल्स पेबल गया, बिल्स पेबल, ओके, बिल कितना बचा, 36 में से 6,000 चुका दिया, मतलब 30,000 प्लस इंटरेस्ट, तो दैट कम्स टू 30,725, 30,725, क्या लिखेंगे हम लोग, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन, ओके, फॉर 2 months लिखेंगे, फॉर 2 months, और यहां पे हमारा सम होता हुआ समाप्त, हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, टोटल, लेट्स डू द टोटल टुगेदर। तो सबसे पहले कितना था, 96,750 अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी था, अब इसको टोटल कहां करना होगा, आई एम डूइंग द टोटल पार्ट ओवर हियर, 96,750 प्लस 24,000, 36 कितना, 36 46 56 60, 66,000 प्लस 66,000, लुक मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, 24 प्लस 36 कितना होता है, दैट कम्स टू 60 और 66,000, तो यहां पे मैंने 66,000 लिख दिया, एंड ये कितना है 30,725, 30,725, और इसमें भी एक और 725, तो इधर 725 लिख रहा हूं, 725, तो लेट्स कैलकुलेट, 550 1 कैरी, तो दैट कम्स टू अगेन 10 1 कैरी, 21 22 and 2 carry, 12 14 14 and 1 carry, 10 16 19, 1,94,200, so the total is 1,94,200, 1,94,200. The debit side will always be equal to credit side, 1,94,200, okay. So the interest part जो हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट, उसका वर्किंग नोट बताना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है. So I guess you can see the entire sum all together with the help of this new board. I am really enjoying using this new board now. We can see the entire sum on one particular screen. Okay students, so now what are we going to do? We are going to move forward to the next sum. We are going to rub the board properly and then we are going to start with the new sum.
So moving forward to the next sum now, which is on page number 308, question number 14. Journalize the following transaction in the books of Sudha. Okay, so I can see there are 4 transactions, 1, 2, 3 and 4 transactions in the books of Sudha, and again there is one drawer and many drawers. Okay, तो एक ही ट्रांजैक्शन में हम ड्रॉवर बन सकते हैं, दूसरे में ड्रॉवी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. So we will be looking at each transaction separately and solving the sum accordingly. So you can take the screenshot or come on page number 308, whatever you feel more comfortable. Okay, students? Yo. Yeah, so moving forward, we have to solve the transaction in the books of Sudha. In the books of Sudha, students, in the books of Sudha, S-U-D-H-A, Sudha. Okay, in the books of Sudha. हम कौन है? हम सुधा है, सुधा. Endorse सोनाली's acceptance. सबसे पहले क्या बोला है? सोनाली's acceptance. मतलब सोनाली कौन हुई? ड्रॉवर के ड्रॉवी. Very good, ड्रॉवी. सोनाली's acceptance of 2 months of 6,000 in favor of उर्मिला. मतलब सोनाली का बिल हमने किसको दे दिया? उर्मिला को दे दिया. आहा. And paid cash rupees 3,500 in full settlement. 6,000 का बिल दिया और रोकड़ा दिया 3,500 in full settlement of 10,000 रुपया. ओ, सो हमको उर्मिला को देना था 10,000 रुपया, लेकिन हमने उसको दिया सिर्फ 9,500. ओके, बिल दिया 6,000 का और 3,500 दिया रोकड़ा. यस, इसका मतलब क्या हुआ? 500 रुपया मुझे डिस्काउंट मिला. सुपर्ब, सुपर्ब. ओके, सो टेल मी हु इज द रिसीवर? उर्मिला इज द रिसीवर. अगेन देयर इज नो डेट गिवन ओवर हियर. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? उर्मिला इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. उर्मिला में आता है सिंगल एल. सो उर्मिला's अकाउंट डेबिट. Who is the receiver? Urmila is the receiver. Urmila is the receiver. Debit. उर्मिला को टोटल हमको चुकाना था 10,000 रुपया. फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000. उन्होंने दिया है क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 10,000. उसके अकाउंट में 10,000 देना था. 2, हमने उसको सबसे पहले क्या दिया? बिल रिसीवेबल दिया. हमने एंडोर्स किया बिल. ओके, टू बिल रिसीवेबल. कितने का था बिल रिसीवेबल? 6,000 रुपए का बिल था. ऑफ कोर्स, परफेक्ट. और उसके बाद क्या दिया? रोकड़ा दिया. रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा. टू कैश अकाउंट. कैश कितना था हमारे पास? 3,500 रुपया कैश दिया. बच गए बस 9,500 ही दिया. इट मीन्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये हमारे लिए क्या? नॉमिनल अकाउंट है. तो टोटल हो गया 10,000 रुपीज. क्या लिखेंगे हम लोग? बिंग 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 बिल एंडोर्स्ड. अच्छा, फिर कॉमा करेंगे. बिंग बिल एंडोर्स्ड, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. सुपर. हमने इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कंबाइन एंट्री करेंगे. हमने क्या किया? तीनों एंट्री को कंबाइन की है. ओके, सो उर्मिला इज रिसीवर. टोटल 10,000 देना था. मैंने इसको क्या दिया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सिर्फ 6,000 का बिल प्लस 3,000 क्या दिया? 3,500 का रोकड़ा. अगेन क्रेडिट व्हाट गोज आउट और बचा 500 रुपया मुझे मिला डिस्काउंट. सुपर. ये गोइंग फॉर द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन नंबर 2. डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या. अच्छा, 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या. एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या. हु इज मतलब ड्रॉवी कौन हुआ? सूर्या हुआ. सूर्या मतलब हम कौन है? ड्रॉवर है. हर एक ट्रांजैक्शन में ये बात जानना कि आप ड्रॉवर है या आप ड्रॉवी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो अगेन इसमें एक्सेप्टेंस किसका है? सूर्या का है. मतलब सूर्या इज द ड्रॉवी. ओके, ऑफ 7,800 विद अ बैंक ऑफ 10% पर एनम. 10% पर एनम. ओके, तो बिल को डिस्काउंट करवाए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हमने उसको क्या दिया? बिल दिया. बिल रिसीवेबल अकाउंट. बिल रिसीवेबल अकाउंट. अच्छा, बिल कितने का था टोटल? बिल था 7,800 रुपए का. बिल था 7,800 रुपए का, लेकिन कितना डिस्काउंट दिया? वी विल हैव टू कैलकुलेट. सो लेट्स कैलकुलेट ओवर हियर. मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं. डिस्काउंट इज इक्वल टू 7,800 रुपीज इंटू कितना परसेंट था? इट वॉज 10% एंड फॉर 2 months. सो 10% इंटू 2 months. सो 2/12. 2 0 कट 0 कट 0 कट 1 जा 6 जा. दैट मीन्स क्या आएगा? 780 रुपीज डिवाइड बाई 6. ओके, तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 नहीं 7 6 1 जा 6. तो 1 और 8 6 3 जा 18 और 1 0. तो दैट कम्स टू 130 रुपीज. कितना आएगा? 130 रुपीज. तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 130 रुपीज. क्या होगा? डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना? 7,670. 7,670. ओके, सो दैट इज द अमाउंट. दैट इज द अमाउंट. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग 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 बिल डिस्काउंटेड
with bank at the rate 10% per annum for 2 months. It is very important to show the working note at the end of the sum, students. अनिवार्य है, this part is really important. You have to show discount 7,800 था, 10 upon 100 10% और 2 upon 12 because it was for 2 months. तो अमाउंट आया 130 रुपीज. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर. कितना मस्त सम है. ट्रांजैक्शन नंबर 1 में भी एक ही एंट्री थी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी एक ही एंट्री है. ये ट्रांजैक्शन नंबर 3, बैंक इन्फॉर्म्ड, बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस. ओहो, ये समय भी अनुराधा है. वाह वाह वाह, अनुराधा seems to be really nice. बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस ऑफ 4,800. अनुराधा का एक्सेप्टेंस मतलब अनुराधा कौन है? ड्रॉवी है, ड्रॉवी. हम कौन हो गए? ड्रॉवर. इसमें भी हम ड्रॉवर थे, इसमें भी हम ड्रॉवर है, इसमें भी हम ड्रॉवर है. सुपर. तो हमने जो बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक के पास, बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस ऑफ 4,800 which was discounted, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर, एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस. और बैंक ने क्या किया? नोटिंग चार्जेस भी पे किया. तो बिल डिसऑनर हुआ तो उसकी एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर. तो ड्रॉवी कौन है? अपनी अनुराधा है. ओके, अनुराधा's अकाउंट डेबिट. तो हम अनुराधा को अच्छे से लिखेंगे एकदम. अनुराधा's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पूरा अमाउंट ऐड कर देंगे. बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, दैट कम्स टू हाउ मच? 4,800 और 125 मतलब 4,925. 4,925 यहां पे करेंगे टू बैंक अकाउंट. तो लिखेंगे बिंग डिस्काउंटेड बिल, जो डिस्काउंट करवाया था डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर्ड, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक. किसने पे किया था? पेड बाय बैंक. तो वो अमाउंट को हमने टोटल एकदम कंप्लीट कर दिया. सुपर. ट्रांजैक्शन नंबर 3 में भी सिर्फ एक ही एंट्री थी. एंड गोइंग फॉर द लास्ट वन, पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस. आहा, पूजा कितनी अच्छी लड़की है, उसने अपना बिल क्या कर दिया? ऑनर कर दिया, ऑनर कर दिया. वेरी नाइस. तो पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस ऑफ 16,400 व्हिच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल कहां पे था? बैंक फॉर कलेक्शन के पास था. तो बिल फॉर सेंड फॉर कलेक्शन क्या करेगा? हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगा. सुपर. बिल ऑनर हुआ मतलब पैसा आया. Who is the receiver? Bank is the receiver. Bank account debit to किसने दिया? Bill sent for collection ने दिया. Bill sent for collection account. अच्छा, अमाउंट कितना था? अमाउंट दिया हमको 16,400 रुपया. 16,400 रुपया एंड 16,400 रुपया. हम यहां क्या लिखेंगे? बिल सेंट फॉर bill sent to bank for collection, to bank for collection. ये क्या हो गया है? ऑनर हो गया है. ऑनर्ड, HONOURED, ऑनर्ड. और फाइनली हमारा यहां सम होता हुआ समाप्त. हम क्या करेंगे? सम को टैली करेंगे. इट वाज सच अ नाइस सम, वेरी क्यूट सम. इसको हम क्यूट क्यों बोलेंगे? बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक एक एंट्री है. भगवान मेरे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही समा है. ओके, सुपर. सो 10,000 अभी हम कैलकुलेट करेंगे. 17,800 और ये क्या है? 4,925 और ये क्या है? 16,400. 16,400. So let's calculate 5 2. Okay, 8 plus 9 plus 4 12 12 21 2 carry 17 21 2 carry 9 और 4 13 13 19 1 carry. Okay, and finally यहाँ पे 39. तो कितना आएगा? 39,125. हाँ, yes, it is 39,125. 39,125. ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है. 925 और 1200, ठीक है. 125 तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा सम होता हुआ समाप्त. इट वाज सच अ नाइस एंड सिंपल सम. हमने आज भी क्या किया? इन द बुक्स ऑफ सुधा हमने 2 सम्स प्रॉपर्ली सॉल्व किए. यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर इन योर बोर्ड एग्जाम. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर यू नॉट गेटिंग योर मार्क्स. સો હું આશા રાખું છું કે તમને બધા સમ સમજે છે સરખી રીતેથી. તમને કંઈ નથી આવડતું હોય તો તમે અમે લોકોને કોલ કરી શકો છો કાં તો મેસેજ કરી શકો છો. અને પછી પણ તમને કંઈ ડાઉટ હોય તો પછી અમે શું કરી શકીએ? અને તો તમને બધી જ એનએનટી સરખી રીતે સમજી લેવાની છે અને લર્ન કરી લેવાની છે. પછી તમારા બોર્ડ એક્ઝામમાં તમે ફટાફટ લખી પાવશો. ઓકે, સો આઈ હોપ આજનું વિડીયો પણ બહુ મનોરંજન
હતું અને કદાચ તમને અમારું વિડીયો સરસ લાગ્યું હોય તો તમે લાઈક કરી શકો છો અને કમેન્ટ પણ કરી શકો છો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો ચેનલને. તો તમે લોકો ઓલરેડી કરી લીધું હશે અને તમારા ફ્રેન્ડોને આપો, શેર કરો, બધાને કહો લાઈક કરો અને એન્જોય કરો ક્વોરન્ટાઇન અને હેવ અ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ સો મચ. આવજો.